हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं इतिहास यानी क्लास 11 हिस्ट्री, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर यहाँ पर है। द सेंट्रल इस्लामिक लैंड यानी इस्लाम का उदय और विस्तार। यहाँ पर लगभग देखा गया है कि 570 से लेके 1200 ईस्वी तक की हम जो है कहानी को लेंगे, जो 11वीं कक्षाओं के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चनों को जो है एनालाइज करेंगे, समझेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में, तो ये और भी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। और इसमें हर एक पॉइंट पे जो है हम विस्तार पूर्वक एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जानेंगे। लेकिन आपको पता है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। According to the chapter here, the Central Islamic Land, there is a most important chapter from a 11th class student. There is the next question is most important arrive here. Explain about the cases of the breakup of Caliphate and the rise of the concept of Sultanate. You know that there is a most important question here. Breakup of the Caliphate and the rise of the concept of Sultanate. This is an important point here. You know that is important. And this case of break of the Caliphate and the rise of the concept of Sultanate, there is important. The 9th century CE marked there is a witness of the decline of the Abbasid Empire. There is a 9th century here, a witness of decline of Abbasid Empire. And taking the advantage of the opportunity, the Ottomans as a state began to be emerged, which lead to the emergence of the concept of sultanates. The Abbasid descended from the 750 to 1258 CE. The downfall of this powerful descendant paved their way for the rise of Sultanate on the account of following reason. What is the reason here? The decline of this century here. Let's see. You know that some point on decline of the Sadis centuries here. Let's see, there is a rising of the Sultanate here. The successor of the Al-Mamun were very big and inefficient and incapable. There is a successor of the Al-Mamnun where is very weak. They paid no attention to the administration, and thus the downfall of this mentally and the powerful descent was sure. The Khalifa of Abbasid centuries imposed very extravagant taxes here, and they were leading a life full of luxury and paid no interest toward their interest of commoners. This is an important point here. There is a leading of the life fully of luxury. There is a leading of the life of the fully of luxury and no paid interest toward the interest of commoners here. The Abbasid paid no attention toward their army. You know that is a fall down. This reason is the most important here. The no attention toward their army. And there was a continued resentment among their people. This is an important point here.
यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं इस्लाम का उदय और विस्तार, इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि खलीफा के विघटन और सल्तनत की अवधारणाओं के उदय के कारणों के बारे में आपने बताना है कि खलीफा के विघटन, खलीफा के आखिर क्या विघटन थी। हमने जैसे देखा, कहते हैं खलीफा काफ़ी महत्वपूर्ण था लेकिन इसका भी विघटन हो गया और सल्तनत की अवधारणाएं उदय हो गई, तो क्या कारण था। खिलाफत के विघटन और सल्तनत की अवधारणा के दो उदय के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रहने वाला है। कहते हैं 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है अब्बासिद साम्राज्य के पतन का गवाह बनी। 19वीं शताब्दी में अब्बासिद साम्राज्य का जो है पूरी तरह से पतन हो गया और इस अवसर का लाभ उठाकर स्वतंत्र राज्यों का उदय होने लगा, यानी यहाँ पर सल्तनत का जो है उदय होना शुरू हो गया, जिससे सल्तनत की अवधारणा का उदय हुआ। जर्नल सी बात है, एक का विघटन होगा तो एक का उदय होगा। इसी विचारधाराओं के साथ जो है जीवन की नैया चलती है और यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि 19वीं शताब्दी में अब्बासिद साम्राज्य का पूरी तरह से विघटन हुआ था। उससे पहले उमैयद शासन का अंत हुआ था, तो जाके अब्बासिद शासन का उदय हुआ। अब अब्बासिद शासन का पतन हुआ तो जो है यहाँ पर सल्तनत का जो है उदय हुआ। तो कहते हैं एक उदय होता है तो एक नष्ट होता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन इसके कारण क्या रहते हैं, ये कारण काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। और जहाँ तक त्रिपान स्टडी सेंटर ने एनालाइज किया है, सबका पतन का कारण वही होता है जो एक का होता है। तो देखा जाए तो सल्तनत की अवधारणा का उदय, कहते हैं अब्बासिद राजवंश ने 750 से लेके 1200 कहते हैं 58 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण काल था। 750 से लेके 1258 ईस्वी तक शासन किया, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था। और इस शक्तिशाली राजवंश के पतन ने जो है निम्नलिखित कारणों के से सल्तनत उदय का मार्ग प्रशस्त किया। आखिर इनका क्या कारण था ख़त्म होने का और सल्तनत का उदय का क्या कारण था। तो दोनों ही बात काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अगर देखिए, एक की गलती एक की समझदारी, यही पतन का कारण बनता है। एक गलती करता है और दूसरा उस गलती को सुधार के आगे बढ़ता है, तो इसी कारण जो है एक का उदय होता है, एक का विघटन होता है, जो हर एक समय काल में देखने को मिला है। तो जर्नल सी बात है, सल्तनत के उदय के कुछ मार्ग क्यों प्रशस्त हुए। कारण था अल मालून के उत्तराधिकारी बहुत कमज़ोर थे, यानी अल मालून जो थे उनके उत्तराधिकारी बहुत कमज़ोर थे, जो हर का पतन का कारण बनता है। अक्षम और अक्षम थे, यानी वो किसी भी कार्य करने में सक्षम नहीं थे, बहुत ही कमज़ोर थे, जिनके कारण सल्तनत काल जो है उदय हुआ। उन्होंने शासन को और कोई ध्यान नहीं दिया, यानी उन्होंने शासन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार इस शक्तिशाली राजवंश का पतन निश्चित था। जर्नल सी बात है, कोई भी अगर जनता की तरफ ध्यान नहीं देगा, शासन की तरफ ध्यान नहीं देगा, तो उसका विघटन होना एक स्वाभाविक बात बनाता है, चाहे वो आज का काल हो या पुरातन समय का काल हो। हर काल में हर चीज़ का जो है पतन इन्हीं कारणों से हुआ है और ये महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर आपको राजनीति में बने रहना है, समाज में बने रहना है, तो उसको समय के साथ चलना पड़ता है और जो समय के साथ नहीं चलता है वो कभी कामयाब नहीं होता है। जर्नल सी बात, अगर आप अपने आप पर लेते हो, अपने ऊपर लेते हो, अगर समय के साथ क्वेश्चन को समझोगे नहीं, याद नहीं करोगे, तो एग्ज़ाम में आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे, तो आपका भी पतन हो जाएगा, यानी आप फेल हो जाओगे। अगर समय के साथ अगर आप चलते हो, समय के साथ क्वेश्चनों का अध्ययन करते हो, पढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, तो आपका जो है सदैव उदय रहेगा और आप सदैव ही कामयाबी की उस मंजिल पे पहुंच जाओगे जो आपके घर वाले जो है सपना देखते हैं। तो ये काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण लगता है। राज्य का विघटन हो या व्यक्तिगत विघटन हो, सबका कारण कुछ हद तक यही बनता है। अब्बासी वंश के जो है खलीफा ने बहुत अधिक कर लगा दिया। देखिए, अब्बासी वंश के खलीफा ने बहुत अधिक कर लगा दिए। अब जर्नल सी बात है, जब कर लगाया जाएगा तो ये कर किससे वसूला जाता है, आम जनता से वसूली जाती है। और जब आम जनता दुखी होगी तो जर्नल सी बात है उसका पतन होना सुनिश्चित होगा। अब देखिए, आधुनिक युग की बात करें तो आजकल के सरकार जो है अपनी मकसद पूरा करने के लिए
अपने इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए जनता को के ऊपर तरह तरह के टैक्स लगाती है, तरह तरह के चीज़ों में जो है कीमत को वृद्धि करती है, और जब इलेक्शन आता है तो ये कुछ हद तक कम कर देती है। आप सोचिए कि अचानक पेट्रोल का दाम इन्होंने 5 रुपया बढ़ा दिया, ठीक है, और जब इलेक्शन आया तो इन्होंने 3 रुपया घटा दिया, और ये क्या आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि हम तो भाई सब चीज़ का रेट घटा दिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रपंड है जिसमें आम जनता सिर्फ फंसती है, उनकी बातों का कभी अनुसरण नहीं करती है, उनके विचारों का अनुसरण नहीं करती है कि ये सब ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि उनको इलेक्शन में जीत हासिल करना होता है और जनता समझदार नहीं बनती है। अगर जनता समझदार होती तो जर्नल सी बात है, जो ये नेता लोग हमारे जो है ऊपर बंदूक रख के जो गोली चलाते हैं वो शायद नहीं कर सकते थे, क्योंकि जर्नल सी बात है, उनको जिताता भी है जनता, हराती भी है जनता। जनता अगर समझ जाए तो इनकी कभी जो है जो ये प्रपंडे अपनाते हैं, जो ये गलत भावनाएं अपनाते हैं और जो ये मकसद से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो शायद इनका मानसा कभी भी क्लियर ना हो सके। क्योंकि देखा जाए तो एक ही बात होना चाहिए कि आप लोग जनता के लिए बने हो, जनता ने आपको जिताया है और आपको इतनी लग्जरी लाइफ दी है। देखिए, हर एक मंत्री के पास अपना एक विभाग होता है, अपना एक कहते हैं गाड़ी होता है, मकान होती है, कहते हैं इतने पैसे होते हैं, पैसे होने के बाद भी वो लोग रिश्वतखोरी के जो है आड़ में पड़े रहते हैं। आखिर भाई क्या करोगे, इतने सारे धन दौलत को ले जाके क्या करोगे, कहाँ रखो, किसको दोगे। कहते हैं जब आखिरी समय आती तो ये सब चीज़ें भी साथ छोड़ देती है। तो क्यों नहीं जनता के लिए आप कुछ करते हो, जनता के सुख सुविधाओं पर ध्यान देते हो। इसे जनता कम से कम आपको अच्छा तो कहेगी। लेकिन मैंने जितना भी नेताओं को देखा है, सबकी एक ही विचारधारा है कि लोगों जनता को लूटना और अपने जेब गरम करना और इलेक्शन में जीत हासिल करना। और यही जो है यहाँ पर ऐसा ही देखने को हमें मिला, क्योंकि अब्बासी वंश खलीफा ने बहुत अधिक कर लगा दिए और वह विलासिता से भरपूर जीवन जी रहे थे। देखा जाए तो खलीफा के जो लोग थे वो बहुत ही विलासिता से भरपूर जीवन जी रहे थे। जनरल सी बात है, जब राजा जो है विलासितापूर्ण जीवन जिएगा तो जनता जाएगी कहाँ पर, जनता पर भी इसी का असर पड़ता है। तो विलासिता भरी जो है भरपूर जीवन जी रहे थे और आम लोगों को हितों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जो आज के समय में भी हो रहा है। आज देखिए, बड़े बड़े मंत्री लोग अपने घरों को जो है 5 स्टार से भी ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, हर तरह की सुख सुविधाएं घर में लगाते हैं। क्या उन्होंने कभी आम जनता के घर में ऐसा लगाने की कोशिश किया? कभी ना किया। क्यों? आप ही लग्जरी जिंदगी जियोगे और आम गरीब आपके लिए पैसे कमाएगी, आपका टैक्स भरेगी। किस लिए भरेगी? आपके लग्जरी जीवन के लिए, आपकी ऐशो आराम के लिए। ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है। तो जर्नल सी बात है, आज जनता भी दुखी है कि हर पार्टी के लोग तो उसी तरह टाइप के हैं, तो ये बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ। ये तो जनता भी समझदारी के काम करती है, जो लालच का पिटारा अच्छा खासा भर देता है, जनता उसी की तरफ चली जाती है। चाहे छोटे लेवल पे इलेक्शन हो, चाहे बड़े लेवल पे इलेक्शन हो, जिनकी लालच की भार अधिक होती है, जीत उसी की हासिल होती है। आज जनता भी नहीं देखती है कौन उसके लिए नेता सही है, कौन गलत है। उनको सिर्फ लालच का पिटारा जो भरेगा उसी की जीत होगी, यही भावना जनता में भी निहित हो गई है। और ये होगी क्यों नहीं? क्योंकि जनता करे भी तो क्या करे, कहाँ जाए। कहते हैं इधर कुआं उधर कुआं, जाएं तो हम जाएं कहाँ। हम इसको जिताते हैं तो वो भी लूटता है, उसको जिताते हैं तो वो भी लूटता है। लेकिन बात यहाँ पर सबसे बड़ी आती है कि लोगों की भलाई क्यों नहीं ये लोग करती हैं, अपना ही जेब गरम करने में क्यों लगे रहती हैं। क्या इनकी मानसिकता मर गई है? क्या इनकी मानवता ख़त्म हो गई है? कहते हैं इलेक्शन लड़ने से पहले जब आम व्यक्ति थे, जब जनता के समक्ष जाते थे तो इतने प्यारे प्यारे बातें, इतने लुभावने लुभावने बातें करते थे, लगता था कि ये तो जनता के लिए सब कुछ कर जाएंगे। लेकिन जैसे कहते हैं एक बार सीट मिल गई, जनता गई पता न कहाँ। ऐसा ही इस समय काल में हुआ कि इन्होंने विलासितापूर्ण भरपूर जीवन जीने लग गए और लोगों के हितों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। अब्बासियों ने अपनी सेना की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया। सेना भी तितर बितर हो गई, लोगों में लगातार आक्रोश बनता गया और जिसके कारण जो है यहाँ पर अब्बासी वंश का जो है अंत हो गया, यानी खलीफा का जो है डिग्रेशन हो गई
और इसी कारण से जो है सल्तनत काल शुरू हो गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखता है एग्जाम व्यू से और आपके समझ के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आपके मन में थोड़ा भी कहते देश भावना है तो जर्नल सी बात है, इस वीडियो को हर एक बच्चे तक पहुंचाना है। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपका छोटा सा मेहनत चाहिए, छोटा सा कदम चाहिए। यूट्यूब से लिंक को कॉपी कीजिए जैसे कि कर सकते हो, और जो है व्हाट्सअप स्टेटस पर लगा दीजिए। 24 घंटा आप तिरपान सेंटर को दे दीजिए अपने व्हाट्सअप स्टेटस। क्या पता कुछ बच्चों को समझ में आ जाए और आने वाला समय में मैं ये ना कह सकूं कि हमारा जनता जो है समझदार नहीं है। क्या हमारे समझ से ही आगे जो जनरेशन बढ़ेगी, क्योंकि जब तक हम लोग समझदार नहीं होंगे, हम नौजवान जो है नहीं समझदार बनेंगे, आगे का जो है भविष्य उज्जवल नहीं होगा। आप भी सोचिए कि हम आने वाले भविष्य को क्या देना चाहते हैं। क्या इन बड़े बड़े लोगों की लालच देना चाहते हैं? क्या इनकी सुविधा उनके बच्चे तक सीमित रखने की बात हम करते हैं? तो जर्नल सी बात है, अगर आप अच्छा चाहते हो जितना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, जर्नल सी बात है सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल में सेव कीजिए, तभी जो है आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो जाने कितने वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा। जो आपकी कक्षा का है, जो आपके लिए ज़रूरी है, उस वीडियो को देखिए, सोचिए, समझिए।